चलो. So good morning, all of you. I hope you are doing well in your preparations. This is a very very important session. बहुत ही important session है regarding इस एग्जाम में कैसे आप लास्ट डे 5 नंबर बढ़ा लें. ठीक है. तो I'll just tell you that बहुत पहले मैं आपको बताया था कि देयर हैज टू बी ए ग्राफ ऑफ मैक्सिमम लाइक दिस. एटलीस्ट अभी से भी आप फॉलो करेंगे कि ये मैक्सिमा जो है ना, ये आपका एग्जाम डे, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो 16 जून को आपका पहुंचना चाहिए. इस ग्राफ का एक फीचर है. व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस ग्राफ? यू कैन सी दैट कि एज टाइम इंक्रीजेस योर परफॉर्मेंस, योर हार्डवर्क, एवरीथिंग इंक्रीजेस. ठीक है ना. बट अगर हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें, ठीक है, इस ग्राफ का, कम क्विकली क्विकली, जल्दी आइए. अगर हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो इट इज नॉट लाइक दिस. इट माइट गो समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू शुड नॉट बी टेकिंग द ब्रेक. थोड़ा सा ब्रेक ले, है ना. लेकिन अब आपके पास जो भी पढ़ेंगे उसके लिए दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं है. तो मेक श्योर वॉट एवर यू रीड इज नो गोइंग विथ यू इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू. See, this examination, prelims examination, cannot be qualified only on the basis of knowledge. This is a fact. This is a fact. Irrespective of however you have studied, how much you have studied, that all are one side, and the exam day, that is 16th, is another side. So I'll tell you, it will look funny, but that is the reality. है ना? When you go to the exam, you must remember three things. Three things. You must remember three things. All right. That you must remember three things. First one is, when you go to the examination, I'll come to the that aspects, that how to plan for your examination. I'm just talking about the psychology first because this is the most important thing. First thing, you have limited knowledge. Limited knowledge, you should understand this. Means most of the question, you just think, you just understand that most of the questions there in the examination you will not be knowing. All right. So if you are not knowing most of the questions, then nobody else is knowing. So number one, you do not know. Number two, if you do not know, no one else in the examination know. ऐसा नहीं है कि किसी को उसमें एडवांटेज है. अगर करंट अफेयर्स आपसे नहीं बन रहा है तो बाकी लोगों से बन जाएगा, ये सब कुछ नहीं है. ठीक है. सो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड इन दैट एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज देयर. एंड थर्ड थिंग यू शुड रिमेंबर while appearing in examination, that this is a prelims examination and question is there and answer is also there. A, B, C, D, answer is also there. So you have got the question here and you have also got the answer here. You just have to use your mind to reach till the answer. Here, what is the gap? Gap is the right logic. You'll have to put the right logic in it. So the crux is, मुझे नहीं आता है. मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरे को बहुत सारा चीज नहीं पता है. लेकिन जो मुझे नहीं पता है वो किसी को नहीं पता है. और जब किसी को नहीं पता है, सब इक्वल लेवल पे हैं, सारे क्वेश्चन में इक्वल लेवल पे हैं. लेकिन क्या आप माइंड यूज कर करके कैन यू रीच टिल द आंसर? बिकॉज आंसर वही है. कोई आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है. यू जस्ट थिंक दैट हाउ टू रीच टिल आंसर. आंसर इज लोकेटेड देयर ओनली इन द क्वेश्चन.
यही क्रक्स है। अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस ना, सो ये कैसे होगा, इसमें देर आर सर्टेन प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक व्हाइल अप्लाइंग दिस। यहां पे अगर 100 क्वेश्चन है ना, सो दीज 100 क्वेश्चन आर 100 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें अगर 30 क्वेश्चंस आप जान रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि ये 30 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक नहीं हो। सो यू विल हैव टू बी स्लो, फोकस्ड एंड स्टडी while solving this. Reading error should not be there. You should be very, very slow, very, very focused. And first, make sure you ensure 60 marks. This is very important. Do not from the first minute only you try for Indian Foreign Service, Forest Service. समझ रहे हैं, है ना? First you secure marks. First you reach in the cutoff zone. And then let's say 70 questions are there. So at least in 70 questions में आप अपने पुराना, है ना, 70 क्वेश्चंस में जो आपका जो आपने ओल्ड स्ट्रैटेजी बनाया है, जो भी अपने स्ट्रैटेजी बनाया है, उस स्ट्रैटेजी पे टैकल करेंगे। और एटलीस्ट इसमें से 40 क्वेश्चंस में भी क्या करना होगा हमें, इसमें से 40 क्वेश्चंस में भी क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस 40 क्वेश्चंस, कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने का। ठीक है ना? सो ए गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट वुड बी अराउंड 90। चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा अटेम्प्ट जो है ना, वो 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत एक्यूरेसी है आपका, 70% टाइप एक्यूरेसी है, तो आप 85 तक जा सकते हैं। 80 के नीचे तो मन थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा डिफिकल्टी है। 90% प्लस एक्यूरेसी इज वेरी डिफिकल्ट। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन विच यू गेट। ठीक है? सो दीज 70 क्वेश्चंस में 70 डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आपका दिमाग चलना चाहिए और माइंड शुड वर्क इन द एग्जामिनेशन। दिस व्हाट इज देयर। व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस कि क्वेश्चन वही है, आंसर वही है। अगर आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, हैव दिस फेथ इन यू दैट किसी और को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हर कोई तुक्का ही मारेगा, लेकिन कौन कितना अच्छा तुक्का मारता है, कौन कितना स्मार्ट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, यही डिसाइड करेगा। और ये हर साल यूपीएससी का ये फैक्टर है। अच्छा, दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर 99% पीपल फेल्ड इन व्हाट, इन दैट CSAT. I'll tell you one thing about CSAT. I'll tell you one thing about CSAT. जल्दी आओ। In CSAT, देखो, this year they might surprise you because everybody is planning कि okay, in CSAT I'll start with the passage first, comprehension first. All right. So this time they might surprise you while giving the long passages. Long passages might come. All right. So be ready for that. हो सकता है आपको एक पेज पढ़ना पड़े पूरा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है? सो वो ट्रैप रहेगा। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उस केस में पैसेज नहीं जाना है, लेकिन इसके लिए तैयार रहें। पैसेज पढ़ना कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू, आई रीड एनी डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? देखो, जस्ट ए वेरी क्विक ग्लिम्स। देखो, अगर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है ना? देखो, मैं दो तरीका बता रहा हूं पढ़ने का। दिस इज वन थिंग, एकदम वेरी क्विकली इन जस्ट 1 or 2 seconds। देखो, Penn State Chemical Engineering researchers recently received a 4-year 1.7 million grant from National Science। Means I am reading it word by word and that is a trap। अगर आप word by word पढ़ते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। That is a big problem। Read it line by line।
For example, Penn State chemical engineering researchers recently received 4-year, 1.75 million grant from National Science Foundation to explore the integration of computer simulations with experiments to quicken development of new flexible electronics. And that is the one line. UPSC passage will be of 6 lines. अगर बढ़ा देंगे तो 2 लाइन और बढ़ाएंगे, 3 लाइन और बढ़ाएंगे, 8 या 9 लाइन, 8 या 9 लाइन का क्रक्स 8 या 9 वर्ड्स में होगा, उससे आप जाएंगे। ठीक है। इन सी सैट इट इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप फेल कर रहे हैं तो आपका साइकोलॉजिकल एरर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर आप कर रहे हैं। आपको फेल नहीं करना है सी सैट में। कैसे नहीं करेंगे आप फेल? कैसे नहीं करेंगे? पैसेज सॉल्व करें, किसी का जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस एरिया पे उसके तुरंत बाद फोकस करें। लंच में जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को बहुत ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसा खा लिया उसके कारण डैमेज हो जाता है सी सेट में। कई बार ऐसा होता है कि सी सेट खत्म भी नहीं हुआ, शाम का पार्टी का सोच रहे हैं, तो वो ये चीजों को अवॉइड करना है कि शाम को क्या करना है वो प्लान कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ कर करके। नो, समझे है ना? तो इस साल सीसेट और टफर साइड रहेगा, आप इसके लिए रेडी रहें। टफर साइड मींस राइट फ्रॉम 0 मिनट द पेपर इज गिवन टू यू। आप कुछ चीट कोड आप अपने साथ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइस वाला क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए आप इरेजर लेकर के जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पेपर मिल गया तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इफ यू रिमेंबर दैट्स वंडरफुल, इफ यू डू नॉट देन इट्स ओके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख दें, उसके नीचे 1 2 3 4 से लेकर 26 तक, और फिर उल्टा उसी में, और फिर चारों के हर कॉम्बिनेशन आपको एक साथ दिख जाए। और ये कब करना है? जैसे ही आपको पेपर मिले, और पेपर मिलने से जो 1 मिनट 2 मिनट का गैप मिलता है उसमें आप ये करके छोड़ दीजिए। ये हो गया सी सेट का कहानी। ठीक है। और ये आपका अभी देखो, अभी 1 दिन बचा हुआ है इसके, आज के बाद टोटल 1 दिन कम से कम है। कल तक आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। कल आफ्टरनून के बाद, ठीक है, कल आफ्टरनून के बाद आपको इसेंशियली एक काम करना है। 2023 का पेपर और 2022 का पेपर, ये दोनों पेपर को आप क्या करेंगे? you will have to read it, see it, not for the purpose of solving the question. This is very important. Understand me what I am trying to say. Not for the purpose of solving the question, but for the purpose of understanding the language of UPSC. है ना? For understanding the language of UPSC. So this is very important to be understood. समझ रहे हैं, है ना? सो मैं एकदम क्विक रिवीजन, एकदम दिमाग में इसको डाल लीजिए। ठीक है। पहला चीज, बहुत सारा चीज मुझे नहीं आता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं आता है। अगर मुझे नहीं आता है तो किसी को और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है। जब किसी को और कुछ नहीं आता है तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन भी है और वहीं पे आंसर भी है। तो इफ यू हैव द आंसर देयर ओनली, यूज योर माइंड टू रीच द आंसर। बाकी सब जो छोटा छोटा चीज है उसको आप पहले से ही प्लान करके रखेंगे, जैसे कि टाइमली सेंटर पे पहुंचना, ठीक है, पेन लेना, एडमिट कार्ड लेना, फोटो लेना, आईडी कार्ड लेना, एटसेट्रा। ये सारा चीज आप जानते हैं और समझते हैं, ये सब समझाने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो मुझे बस इतना ही बोलना है। मुझे भरोसा है कि आप सबका तैयारी अच्छा है। ठीक है ना? तैयारी हो चुका है, जो भी होना है हो चुका है। अब बस इस फिलॉसफी पे काम कीजिए आज से भी, कि जो आपका पीक पहुंचे वो कब पहुंचेगा? 16 तारीख को। आपका जो पीक पहुंचेगा वो 16 तारीख को पहुंचेगा। 16 जून को आपका पीक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद आप आज तक का सबसे बढ़िया टेस्ट 16 तारीख को देंगे, सबसे शांत होकर के 16 तारीख को देंगे, सबसे ज्यादा माइंड यूज करेंगे, कोई हैंगओवर नहीं, बबलिंग एरर नहीं करेंगे, कोई भी बबल करने में एरर नहीं करना है। ठीक है। दैट इज ब्लंडर। वो रिजल्ट, एक गलती यूपीएससी मिस्टेक माफ नहीं करता है।
तो बबल आप ध्यान से करेंगे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे लगे इट्स ओके, बट बबल आराम से करेंगे, ठीक है। और यही 3 चीज है, ठीक है। तो किसी को और कुछ पूछना है, कहना है तो बता दो। मेरे तरफ से तो हो गया, आपको सब बता दिया मैंने। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, ठीक है। किसी को कभी भी कोई दिक्कत लगे, नॉट इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन, बट लंच ब्रेक में चाहे कभी भी लगे कि हाँ मेरे से बात करके कुछ आपको फायदा होगा, तो आप कर लीजिएगा। चाहे आप अपना साइकोलॉजी गड़बड़ाने मत दीजिएगा। वॉट एवर हैपन्स, यू डोंट लेट योर साइकोलॉजी वर्क अगेंस्ट यू, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का खेल ज्यादा है। आज तक जितना आपने पढ़ा ना, कोई बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। पढ़ा नहीं पढ़ा, सब एक लेवल पे आ गए। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, योर माइंड शुड बी विथ यू, एंड आपका माइंड और लोगों से रिलेटिवली बेटर चलना चाहिए। आप जानते हैं, अपने माइंड को समझते हैं कि कैसे बेस्ट चलाना है, ठीक है। पीटी निकाल लें, और अच्छा फॉरेस्ट वॉरेस्ट निकाल लें, और फिर मेरे से मिलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सबको। छोटा सा सेशन है, और आपको ऑल द बेस्ट, और बेस्ट विशेष के लिए ही मैंने ये रखा था। ये चीजें आप समझते ही हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, सी यू ऑल। लास्ट मोमेंट में फाइनल रिवाइज क्या करें? लास्ट मोमेंट में फाइनल रिवाइज क्या करें? देखो, मैं तो आपको बोलूंगा लास्ट मोमेंट में भी आप स्टैटिक पे फोकस करें, थोड़ा थोड़ा। देखो, वैसे रिवाइज नहीं करना कि अभी लक्ष्मीकांत उठा ले, लक्ष्मीकांत उठा लिए तो फंस गए, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत उठाना नहीं है। अभी जो आपका बचा हुआ है, जो आपका छोटा छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और चाहे सबसे अच्छा ये है ना कि जो आपने गलती किया है पहले के टेस्ट, ठीक है, उसको रिवाइज करने एक बार, ठीक है। जैसे आपको कोई लग रहा है कि मेरा आर्ट एंड कल्चर वीक है, तो आर्ट एंड कल्चर कर लें, क्या दिक्कत है। तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, लास्ट मोमेंट में फाइनल रिवाइज क्या करे, ठीक है ना। अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजी है ना। और जिनका जो जो स्ट्रैटेजी है वो उसी तरीके से रिवाइज करे। जैसे कुछ लोगों का नोट्स रेडी होगा, अगर नोट्स रेडी है आपका, तो फिर आपको वो नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है ना। आप वही नोट्स पे जाएं, जो आप कर रहे हैं वही करेंगे। कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि यू डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, ठीक है ना। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूपीएससी का PYQ 2023 और 2022 का लैंग्वेज के लिए जरूर देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीसैट में कॉन्फिडेंस रहो, नहीं भी है कॉन्फिडेंस तो मैं बोलता हूं कि आप व्हेन यू सी द क्वेश्चन यू हैव अ इंटरनल हैप्पीनेस कि अच्छा ये क्वेश्चन बनने के लिए ही आया है, और ये मेरे से बन जाएगा, तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। लॉजिक सही रखिए, माइंड सही रखिए, बेसिक से चलिए। कहीं भी कोई फॉर्मूला लगाने का मत सोचिए, एकदम बेसिक से चलिए, और एकदम शांति से फोकस्ड होकर काम कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है पीटी, ठीक है। ऑल राइट, सी यू ऑल, ऑल द बेस्ट।